Good morning everyone. I hope students you are clear with the topic whatever we have discussed till now. We have studied about the accounts, right? Type of accounts. Mainly we have two kind of accounts, personal and impersonal. And impersonal is further classified in two parts, real account and nominal account. So personal account is containing three accounts, three kind of accounts, that is natural person, artificial person and representative person. Fine. And real account is containing, it's regarding assets, fixed assets and fictitious assets. Fixed are those one which we can tangible assets, not fixed. Fine. Tangible and intangible. Tangible means which we can see and touch, and intangible which we can't see and touch. Nominal account is related to all the expenses and losses, income and gain, right? One important thing students, if nominal account is having any prefix, so that is converted into personal account. As we have the salary, if we add something, means salary से आगे कुछ लगा देते हैं like outstanding or prepaid salary, तो that becomes your personal account. Okay, as your interest or rent, any expenses. So if we add any word like interest के आगे हम accrued या unearned लगाते हैं, तो that also becomes your personal account. Fine. So here these were the accounts and we have studied about the rules of that. Personal account rule is debit the receiver, credit the giver. Real account, debit what comes in and credit what goes out. Nominal account, debit all the expenses and losses, credit all the income and gain, right students? And our accountancy is based on double entry system. Double entry system means every transaction is having the double aspect. One is debit side and another one is credit. Means आप अगर कुछ देते हैं तो somebody is there at the another side to receive that. Suppose you are selling goods, आप goods hand over कर रहे हैं तो there is somebody to receive. आप सेल कर रहे हैं तो दूसरा परचेज कर रहा है. आप goods दे रहे हैं तो आप पैसा ले रहे हैं. If you are purchasing something, that means you are receiving the goods. आप परचेज करते हैं तो goods आपके पास आती हैं and cash जाता है. So this way every transaction is having two effects. One is debit, another one is credit. So we call it a double entry system. Fine. Now finally we are starting the journal entries. Students, just pay attention on this format. This is the format of your journal entry. We have to write journal entries in the books of so and so, and here we draw this line. Okay, and we draw 1 2 3 4 5 columns and their size is like that. At the end we draw two columns, moderate columns. These two columns are for amount. Fine. And this is ledger folio. LF means ledger folio. This is your particulars where we will be writing everything, and this is your date column. Okay, so this starts this way: date, particulars, ledger folio, debit amount and credit amount. It should not be closed. This should be very clear. यहाँ पे आपको लास्ट में लाइन ड्रॉ नहीं करनी है. सम स्टूडेंट दे वांट टू शो देयर वर्क नीट एंड क्लीन, सो दे ड्रॉ अ लाइन हियर, तो दैट इज़ रॉन्ग. वो रॉन्ग फॉर्मेट हो जाएगा, क्रॉस कर दिया जाएगा. सो डोंट ड्रॉ अ लाइन. फाइन. सो दिस इज़ योर फॉर्मेट. नाउ आवर फर्स्ट ट्रांजेक्शन विच वी टेक, दैट इज़ राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. ओके, वेयर यू स्टार्ट योर बिजनेस फ्रॉम, सम इन्वेस्टमेंट. कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको कुछ इन्वेस्ट करना होता है. सो यू विल गेट दीज ट्रांजेक्शन्स एज अ स्टेटमेंट. ओके, योर फर्स्ट स्टेटमेंट you get, that is Ram started business with cash. It can be Ram, Shyam, Mohan, anyone can be there. Okay, so here two things you have to remember students. Now in every entry you will be learning something. Ki business, whatever we are thinking, whatever we are doing in the books of business. Okay, and second thing, we have to think all these aspects from business point of view. Which two important point I've told you? कि we will be entering everything in the books of account of business. Business की books में entry करनी है, and दूसरा आपको business के point of view से सोचना है, किसी और के point of view से नहीं सोचना है. ठीक है. Now you just think कि राम ने business शुरू किया है, राइट? तो राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. अब ये एंट्री बताने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए. एज वी डिड नॉट टेक द थ्योरी, तो एज द पॉइंट्स विल कम आई विल बी एक्सप्लेनिंग. एंटिटी कॉन्सेप्ट. ओके, एंटिटी कॉन्सेप्ट इज वन कॉन्सेप्ट विच आई एम एक्सप्लेनिंग यू टुडे. एंटिटी कॉन्सेप्ट टेल्स कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट from accounting point of view. We have two point of view. One is legal and one is accounting point of view. Fine. So legal point of view से तो they are the same one, right?
बट फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू रिमेंबर, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स की एंट्री कर रहे हैं. तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इट टेल्स बिजनेस एंड बिजनेस मैन बोथ आर सेपरेट. इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस थिंक अबाउट द एंट्री कि दिस इज मिस्टर राम, राइट, एंड दिस इज योर बिजनेस. टू थिंग्स आर देयर. राम हैज़ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. राम अलग है, बिजनेस अलग है. तो राम ने बिजनेस को 50,000 रुपीज़ दिया है. ठीक है, तो हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. ठीक है, किसकी बुक्स में एंट्री करनी है, बिजनेस की बुक्स में एंट्री करनी है. एवरीथिंग वी विल बी थिंकिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू. एंड एंटिटी कॉन्सेप्ट टेल्स कि बिजनेस एंड बिजनेस मैन बोथ आर सेपरेट. ये दोनों अलग अलग हैं. क्लियर? दोनों अलग हैं. ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. राइट नाउ राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000. राम ने बिजनेस को 50,000 रुपये दिए. अब सोचिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस में क्या आया, व्हाट बिजनेस हैज़ रिसीव्ड, बिजनेस ने कैश रिसीव किया है. राइट, व्हाट इट हैज़ रिसीव्ड, कैश. इट हैज़ रिसीव्ड कैश. ओके, सो कैश इज योर assets. Assets comes in the real account. What is the rule of the real account? Real account tells debit what comes in. आने वाली चीज़ को डेबिट करो. बिजनेस में 50,000 रुपये आए हैं. आने वाली चीज़ को, ये आने वाली चीज़ है, आने वाली चीज़ को डेबिट करो. राइट, सो आवर फर्स्ट एंट्री, एंड suppose your business has started on 1st April 2020. So here we mention the date, whatever the date is given, and I write cash account debit. This way we write, there is a fixed format, cash account debit. Fine. How much? And this is the column of debit and this is of the credit. So debit की लाइन में मुझे लिखना है 50,000. फाइन, ये हमारा सिंगल साइडेड हो गया. कैश अकाउंट डेबिट. नाउ एवरी डेबिट हैज़ द सेम अमाउंट्स क्रेडिट, एंड जो हम क्रेडिट में लिखते हैं वो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखते हैं. राइट स्टूडेंट्स, यहाँ से नहीं लिखना है आपको, इतना स्पेस छोड़ के लिखना है. एंड क्रेडिट में लिखने से पहले ये रूल है कि आप 2 लिखेंगे. ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज बिजनेस में आपका 50,000 रुपीज़ कैश आया है. तो डेबिट व्हाट कम्स इन. अब क्रेडिट में हमें सोचना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किससे आया है, क्योंकि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है. बिजनेस के पास कैश किससे आया है, राम से आया है. तो राम इज़ योर लाइबिलिटी. नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, आपने अगर किसी से 50,000 रुपये लिए हैं तो आप वो वापस करेंगे या नहीं करेंगे? एक ना एक दिन तो आपको वापस करना है ना. वन डे यू हैव टू रिटर्न दिस मनी बैक टू द पर्सन. तो जो चीज़ आपको वापस करनी है, किसी को पे करनी है, वो आपकी लाइबिलिटी होती है. ऑलवेज रिमेंबर. राइट, आप लाइबल है ना किसी को पे करने के लिए. यू आर लाइबल टू पे 50,000 रुपीज़ बैक. सो व्हेन बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, तो बिजनेस हैज़ टू पे बैक 50,000 रुपीज़ टू मिस्टर राम वन डे. ओके, तो 50,000 बिजनेस की लाइबिलिटी हो जाती है. एंड रिमेंबर एंड नोट डाउन इन योर कॉपी, ऑल द लाइबिलिटीज़ आर हैविंग क्रेडिट बैलेंसेज. ओके, जितनी भी लाइबिलिटी हम आगे पढ़ेंगे उन सबको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं. विल यू रिमेंबर? जस्ट नोट डाउन इन योर कॉपी, पॉज द वीडियो एंड जस्ट राइट डाउन. ओके, सो ये लाइबिलिटी में आएगा आपका. क्या आएगा लाइबिलिटी में? क्या चीज़ है जो आपने लिया है? कैपिटल. राइट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. बिजनेसमैन जो पैसा इंट्रोड्यूस करता है फर्स्ट टाइम, उसे हम कैपिटल कहते हैं. तो यू कैन राइट राम्स कैपिटल ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और राम्स कैपिटल यू कैन से. एंड इट इज़ योर, एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू, 2 यानी कि क्रेडिट. तो ये हम क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे. ओके, सो जस्ट राइट डाउन 50,000 in the credit side. Okay, now we have to write the narration also. What is narration? Narration means कि अगर आप narration पढ़ते हैं तो आपको statement पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती. You understood कि what we are doing, right? Narration we start with being or for, any of the word you can use. Being business started with cash. द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर स्टेटमेंट. नरेशन क्या होता है? जो आपको स्टेटमेंट दे रखी होगी उसका शॉर्ट फॉर्म आपको लिखना होता है. फाइन, एंड हेयर वी हैव टू ड्रॉ दिस लाइन. एक लाइन आपको लगानी है पर्टिकुलर के कॉलम में. LF को भी क्रॉस नहीं करना है. राइट, तो हेयर यू हैव कंप्लीटेड 1 एंट्री.
and here you can see it is having the double effect, right? double entry system means जो amount आपका debit में आया है वही amount आपका credit में भी आएगा. Okay, so one entry we have completed. Okay, now second entry, suppose I say कि Mr. Ram has purchased goods. Ram has purchased goods of rupees 10,000, right? So the transaction is Ram has purchased goods of rupees 10,000. Nothing else is written. अगर स्टेटमेंट में कुछ और नहीं दे रखा है कि he has purchased goods from Shyam या फिर on credit something like this, it means he has purchased the goods on cash basis, right? Cash basis means नगद खरीदी है. Now just think students, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. एंड किसकी बुक्स में एंट्री हो रही है? बिजनेस की बुक्स में एंट्री हो रही है. तो राम हैज़ परचेज गुड्स, इट्स नॉट राम. राम किसके बिहाफ पे कर रहा है? बिजनेस के बिहाफ पे. तो बिजनेस क्या कर रहा है? गुड्स परचेज कर रहा है. ऑल राइट, अब आप अपने आप में बिजनेस बन जाओ, ठीक है, कि आप परचेज कर रहे हैं और आप कौन है? बिजनेस हैं. अब सोचिए कि जब आप परचेज करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होता है? आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो आपके पास कुछ आया और कुछ गया. जस्ट थिंक, इनफैक्ट यू कैन टेल मी राइट नाउ बट आई टेल यू कि आप जब परचेज करते हैं तो आपके पास गुड्स आती हैं, राइट? जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो चीज़ आ जाएगी और क्या जाएगा? पैसा जाएगा. क्यों जाएगा? क्योंकि आपने कैश बेसिस पे ख़रीदा है. ओके, तो परचेज करने का क्या इफ़ेक्ट हुआ? गुड्स आएंगी आपके पास और कैश जाएगा, राइट? नाउ वी हैव टू थिंक कि गुड्स कौन सी हैं आपकी. गुड्स अगर रियल अकाउंट में आती हैं, आई जस्ट टोल्ड यू कि गुड्स वी कैन ट्रीट इन टू वे. उसको असेट्स भी मान सकते हैं और एक्सपेंसेस भी मान सकते हैं. असेट्स हैं तो भी आपकी डेबिट में आएंगी. रियल अकाउंट टेल्स की डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस भी आपके क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, ठीक है. तो आई कैन से कि क्या आया मेरे पास? गुड्स आई हैं, ठीक है. तो इट इज़ गुड्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट इज़ गोइंग, क्या जा रहा है आपके पास से? गुड्स आ गई आपके पास और जाएगा क्या? कैश. जाने वाली चीज़ को, कैश आपका रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट टेल्स डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो कैश इज़ गोइंग, सो टू कैश अकाउंट. सो गुड्स आपकी डेबिट कॉलम में 10,000 की आपने परचेज की थी. आई विल शो 10,000 इन द डेबिट. एंड क्रेडिट के कॉलम में पे अटेंशन स्टूडेंट्स, डोंट राइट इन द सेम कॉलम. यहाँ मत लिख देना. one debit wala and another one is credit wala. So this way you have to write. Fine. Its narration we write being goods purchased on cash basis. Fine. And here we draw a line. One more small entry I tell you. Ram has purchased goods. Fine. Now Ram has sold goods. Ram has sold goods of rupees 15,000. ओके, 15,000 सी गुड राम ने बेची हैं. नाउ हु इज़ मिस्टर राम? हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस. आप बिजनेस बन जाइए फटाफट से, अपने आप को बिजनेस समझें और सोचें कि आपने क्या किया है. यू हैव सोल्ड गुड्स. जब आप कोई चीज़ बेचते हैं तो व्हाट इज़ कमिंग, व्हाट इज़ गोइंग, एंड कुछ नहीं दे रखा है साथ में, तो दैट मीन्स इट इज़ ऑन द कैश बेसिस. फाइन. सो व्हाट इज़ कमिंग एंड व्हाट इज़ गोइंग. आप बेचते हैं तो गुड्स क्या हो रही हैं? जा रही हैं. कोई खरीद रहा है ना आपसे, आप बेच रहे हैं, somebody इज़ परचेजिंग, तो गुड्स आर गोइंग. एंड व्हाट इज़ कमिंग? कैश. आप बिजनेस बन जाइए और आप कुछ बेचते हैं तो आपके पास पैसा आता है और गुड्स जाती है. ओके, नाउ हाउ डू वी पास द एंट्री है? व्हाट इज़ कमिंग? कैश इज़ कमिंग, राइट. तो दिस इज़ कैश अकाउंट डेबिट. एंड क्या जा रहा है? गुड्स जा रही है टू गुड्स अकाउंट. ओके, हाउ मच? अमाउंट इज़ 15,000. कैश अकाउंट डेबिट, दिस इज़ डेबिटेड बाय 15,000 and goods are going of 15,000 credit. Okay, and entry is being goods sold of rupees 15,000. Fine students, and here we have to draw the line. Very important point which I didn't disclose it here. Pay attention. Here you have written goods because you have purchased, and goods is what? The item in which we deal, that is your goods. So here we have purchased, debit, and here we have sold, it's credit. So
इनफैक्ट वी डोंट राइट गुड्स, हमें आइडेंटिफाई करना ईजी होता है अगर हम इसका नाम लिखें, तो हमें यहाँ गुड्स नहीं लिखना है. ओके, दिस वॉज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, आई हैव रिटन इट. यहाँ पे आपने क्या किया, परचेज किया था, तो हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट. ओके, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, गुड्स आई, पैसा गया. ओके, एंड हेयर यू आर सेलिंग गुड्स, तो एंट्री क्या होती है आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट. So please keep it in your mind, we don't write goods, this was just make you understand, otherwise you could get confused. परचेज के टाइम आप परचेज को डेबिट करते हैं एंड सेल्स के टाइम सेल्स को क्रेडिट करते हैं. ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे. सो लेट मी टेल यू व्हाट वी हैव डन. इट इज़ योर entity concept. Business and businessman both are separate. We have to think from business point of view, and we have to enter we have to pass the entry in the books of account of your business, right? Thank you so much, and I'll give you some transactions to do, and you must pass the journal entry of those one. Thank you.